हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। People as participation in the elections and electoral reforms. This is the most important here. People as a participation in elections and electoral reforms here. This is the most important. The discussion so far has been enabled us to participate the significance of election, ensuring the people's as a participations in their democratic process. But over the years, it has been found that the election system in India needs an improvement to be make India is a truly participatory as a democracy. We shall now discuss the most notable factor that has a contribute to be ensure a people's participation in the election. The discussion will be also focus on those issues that are considered concern of the Indian election as well as on suggested electoral reforms. This is the most important topic here, and the next topic is the most important also, universal adult franchise. The next topic is the most important, universal adult franchise here. Election play an important role primarily because of the system of universal adult franchise adopted in India just after its independence. It is interesting to be observed that in a Great Britain, the universal adult franchise was granted in 1928, nearly 300 years after the process of democratization began here. In Switzerland, the home of democracy, it was also granted as later as in 1972. In India, however, universal adult franchises become a part of the electoral process right from the beginning of our establishment as a democracy. That is what after independence. And what does the universal adult franchise mean? There is a most important question here. What does universal adult franchise mean here? Let us begin the relative meaning of the concept of universal adult franchise in this context. Universal mean commonly applicable to be all person without any discrimination. Adult mean a person who is a major and not a minor. A franchise mean individual's right to be cast his or her vote. Universal adult franchise thus the mean a system in which all the adult men and women without any discrimination have a right to vote in the election. But all adults do not include those who are the legal barrier from voting. This is important. The concept of universal adult franchise is based on the principle of political equality. One person, one vote. No one has more than one vote. It's a help to ensure the liberties of their people and helps to secure protection of rights. It is educated in so far as is within the scope of people of participation. This is important. The right to vote is linked with the age of person. The minimum age required for the voting differ from a country to country. In most countries of our times, the voting age is 18 years. As in India, China, United States of America, and Great Britain and Russia. In a country like Iran, the minimum age for the voting is 15 years old, and while the Brazil, Cuba, Nicaragua is 16 years, and in Indonesia also, and Northern Korea and Sudan, it is 17 years. In Japan and Tunisia is 20 years, while South Korea is 19 years. In a country such as Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maldives, and Singapore, the voting age is 21 years. But the Uzbekistan is a voter has to have a minimum
there is a age of 25 years. There's a most important age group we are voting here. And the next year, electoral reform. Let's see electoral reforms here. Here come again, there is a electoral reformers. This is important. As we have seen, the electoral system in India based on the universal adult franchise has a help of a voter not only in the choosing there is representative but also in the facilitating smooth and peaceful change of governments and replacing non-political parties or seats of political party by another. We have also observed that our elections held so far have largely been free and fair. People have participated in their election process activities, and accordingly, election has become an important part of our democratic life. And yet, there are contain a critical problem that has been to adversely is effective not only the quality of electoral process but also the functioning of democratic system. This is important, and this definitely is called the electoral reforms here. In fact, the electoral reforms has been engaging the attention of the parliament, there is a government, the election commission, the press and people for a long time. Some measures were implemented in the past to be removed, largely islances in the law, and based on the experience in the recent past. The need has been felt there are some steps to be taken quality for amendment of contain a provision of law. And there are issues like ringings of election and fake and bogus voting. Fake and bogus voting, there is the most important problems on elections. Impersonations and the violence during the elections and was the role of many and the muscles power. This is important. Intimidations of the voter, especially the people of weaker section, and the misuse of the governmental machineries, both capturing and criminalization in the both election and politics that demand immediately attention. This is important. Let's see picture on the voting time. On your screen, there is a most important picture here, polling booth. There is a person give the vote for adult franchise accordingly here. And this negative development has been discussed at a different level and the action on for the electoral reforms. It needed a lot of electoral reforms have already been to the introduced, but no system of election can ever be a perfect. In actually practice, there away come of the flow of limitation in the electoral practice. We have to be keep researching some mechanism to make an election truly free, fair, and real. Numerous suggestions for the electoral reforms have come from the scholar, political parties, and government is a sponsor and community and various independent sources here. This is important. And the last see here a suggestive electoral reformers is following here. A tentative list of suggestive electoral reform is flowing. This is the most important. Democratization of the electoral system we have made from time to time so as to keep the electoral system in a pace with the changing times. A change from ongoing system, priority system to some from a proportional representation system to be reduced the vote seats and imbalance sees box below here. And the functioning of political parties to be regulated in order to be ensured that they are functioning in the transparent and democratic manner. And there is a need to be adopted their expenditures as encouraged during the election. And the fourth point here, electoral law to be made more stringent and there must be a provision for harsher or punishment. This is important. And the next year, state funding of election to be introduced so as to reduce and curb election expenses. And a special provision to be made to be ensured at least
1/3 representation of women in a parliament and state legislature. This is important. And the role of money and muscle power to be equable during the election. This is a common here. The role of money and muscles power here. And criminalization of politicals to be stopped in the election. This is also important. Criminalization of politics and carrying with any criminal record to be varied from the contesting election. This is impossible. And complete ban to be imposed on the use of caste and religious appeal in the election campaign. This is also a false statement, because today is a maximum party use a caste and religious appealing section here, and there is a compass. This is most important here. In the box, this is the most important point here. The plurality system means referred to an election won by the candidate having the maximum votes. And this voting system used at a present to elected member of the legislative assembly in a single member and multi-member contests here. And the next year, the provisional representations here in an electoral device to be ensured representation of all sections of people more or less in proportions to be their voting strength. Under this system, any group, whether it is a political parties or interest group, will be ensured representation in the proposition to be a popular votes it's obtained. This important point in this box here. The Election Commission has taken several new initiatives in their recent past, a reform to be some of which have already been made above. Notable among these are is the most important statement here. Notable, there are schemes for use of state-owned electronic media for broadcasting and telecasting by political parties. This is important. And second here, restriction on the opinion and exit poll, because this poll might influence a voter. And the next year, checking a criminalization of politics. This is also important point here. And computerization of electoral. This is important, computerization of electoral rolls here. And providing the elector with their identity card. Providing elector with the identity card, and simplifying there is a procedure for a maintenance of account and filling of same by candidate. This is also important point here. And the next point is also important, a variety of measures for strict and compliance of moral code of conduct for providing a level playing field to the contestant during the election. It's important, a variety of measures for a strict compliance of moral code of conduct for providing a level playing the field of contestant during the election. And as our electoral system has a worked well even on the content advises to conditions and hopes are reaped that a democracy in our country is given to stay and continue to be a better. And our peoples are committed to be democratic value, and there is a chance that the government will come up to people expectation. This is the most important expectation on here so people. भारत में चुनाव का जो प्रावधान किया गया है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है व्यक्त करता है, लेकिन देखा जाए तो चुनाव में बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी बुराई हैं जो भारत को खोखला करता जा रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या ये देश कल्याण के लिए सही रहेगा, इसी पे विचार पे हम चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक यही आया है, चुनाव और चुनाव सुधारों में जन सहभागिता। देखिए, अब तक की चर्चा से हम लोकतंत्र प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए चुनाव के महत्व को समझने में सक्षम हुए हैं कि चुनाव होना डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा विचार है इतने सारे चुनाव होना देश के लिए बहुत ही कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि चुनाव होने इतने सारे चुनाव करवाने से भारत में करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हो
और ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि चुनाव कराने के लिए मनी चाहिए, पैसे चाहिए। और देखा जाए अगर सुचारू रूप से कोई व्यक्ति अगर कमाता है तो इतने सारे पैसे कमाना उसके लिए संभव नहीं है। और ये क्या करते हैं, इसके लिए गलत जो है कदमों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों को जो रूल रेगुलेशन नहीं देना चाहिए वो रूल रेगुलेशन दे के जो है कमाने की होड़ लगी रहती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर इलेक्शन की इतनी सारी हुई भारत में, तो जर्नल सी बात है, भारत में करप्शन ख़त्म करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। चाहे वो क्यों ना ये बात कहे कि आप रिकॉर्ड कीजिए, हम एक्शन लेंगे, आप नहीं करप्शन ख़त्म कर सकते। जब तक इतने सारे इलेक्शन भारत से ख़त्म नहीं होंगे तब तक जो है करप्शन ख़त्म करना शायद संभव नहीं है। और जो मैं आज बात बता रहा हूँ, आने वाला समय में देखिएगा इसी बात का अनुसरण किया जाएगा। अभी बेशकली जो है सब आंख बंद कर रखे हैं, कान बंद कर रखे हैं और देख नहीं रहे इन बातों पे, लेकिन आने वाला समय में मैं जानता हूँ कि इस बात पे अमल ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि तभी भारत से करप्शन को भी ख़त्म किया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दूसरे देशों में देखिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, हमसे विकसित है, लेकिन वहाँ पर इतने इलेक्शन नहीं होते हैं जितने इंडिया में हो रहे हैं। तो जर्नल सी बात है, आधे से अधिक पैसे जो भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है वो इलेक्शन ही है। और शायद न जाने कब हमारे देश के मंत्रियों को ये बात समझ में आएगा और कब जाके जो है भारत जो है एक ही इलेक्शन भारत में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाला समय में शायद हो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम तो सिर्फ अब यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम ऐसा बदल सकें। तो यही बात यहाँ भी बताया गया है कि लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि भारत को एक सिर्फ जो है भागीदारी लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता अवश्य है। जब तक अगर चुनाव में सुधार नहीं किया जाएगा, भारत की भागीदारी लोकतंत्र में होना संभव नहीं रहेगा। अब हम सबसे उल्लेखनीय कारक की चर्चा करेंगे जो चुनाव में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायक हुआ है। ऐसे मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाएगा जो भारतीय चुनाव के लिए चिंता का विषय बन गया है। साथ ही चुनाव सुधार में भी चर्चा होगी। तो सारी जो है हम पॉइंट पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है और स्वतंत्रता के बाद भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कदम उठाया था कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। और ये बड़ी ही रोचक बात भी है, क्योंकि लोकतांत्रिक की प्रक्रिया के आरंभ होने के लगभग 300 वर्षों के बाद सन 1928 में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ था। यानी देखा जाए, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो है 1928 में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और यूपीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकतंत्र का घर माने जाने वाले स्विट्जरलैंड में यह सन 1972 में प्रदान किया गया। यानी सभी देशों ने इस बात का अनुसरण किया कि जो है वयस्क मताधिकार होना ही चाहिए, इसे जन जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना के आरंभ से ही सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, इसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आखिर मतलब क्या होता है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सार्वभौमिक जो है मताधिकार के अवधारणाओं के शाब्दिक अर्थ को समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। सार्वभौमिक का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर साधारणतः लागू होना। देखिए, हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है जो देश कल्याण के लिए, धर्म के रिगार्डिंग, सभी बातों के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने संविधान की बातों को अगर अनुसरण करें तो भारत जो है आदर्शमय देश बन सकता है और यहाँ पर किसी प्रकार के दंगा फसाद, धर्म के प्रति, जाति के प्रति कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे कहते हैं सारे कुछ संविधान में लिखी गए हैं। कहते हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो काफ़ी दूरदर्शी थे और ये सब बात जानते थे कि जब तक अगर संविधान को सही तरह से पालन ना किया जाए, देश में जो है मनुष्य का जीवन शांतिमय नहीं हो सकता है। लेकिन आज के समय में बहुत से जो लोग हैं, बहुत से मंत्री सब हैं, वो इन बातों का अनुसरण बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं और हमारे जो संविधान से अलग ही अपना संविधान बना रहे हैं, जो कि सही नहीं है।
अब देखा जाए यहाँ व्यास का अर्थ होता है वालिग, यानी बच्चा नहीं होता है, वालिग हो जाता है। ठीक है, तो ये वालिग के रूप में आ जाता है। मताधिकार का अर्थ ही है कि व्यक्ति का मत डालने का अधिकार, और इस तरह व्यास मताधिकार का अर्थ है एक ऐसा व्यवस्था जिसमें सभी बालिग लोग, स्त्री हो पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान का अधिकार रखते हैं। लेकिन सभी व्यासकों में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्हें कानूनी रूप से मतदान से वंचित किया गया हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको मतदान करने से वंचित किया जाता है, जो हमारे सरकार के रूल रेगुलेशन में आते हैं। सर्वजन व्यास जो है व्यास मताधिकार की अवधारणा एक व्यक्ति एक वोट के राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है कि एक व्यक्ति एक वोट, यही राजनीतिक समानता है। किसी के पास एक से ज़्यादा वोट नहीं होता है, और यह लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में तथा अधिकार की रक्षा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मताधिकार का संबंध व्यक्तियों की उम्र से भी होती है, यानी मताधिकार का संबंध जो है व्यक्तियों के उम्र से भी होती है। मतदान के लिए न्यूनतम उम्र विभिन्न देशों में अलग अलग है, और ये जान के आप हैरान भी होंगे, बहुत से देशों में अपने अपने प्रावधान किए हैं। इस युग के अधिकांश देशों में जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन तथा जो है रूस में यह 18 साल प्रावधान किया गया है। यानी भारत, चीन, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस में यह 18 साल निर्धारित की गई है। जबकि देखा जाए तो ब्राज़ील, क्यूबा, निकरागुआ में यह 16 साल जो है सुनिश्चित किया गया है। तथा देखा जाए तो इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया तथा स्वीडन में जो है 17 वर्ष जो है सुनिश्चित किया गया है। तो ये वोट देने का उम्र यहाँ इन क्षेत्रों में किया गया है। और वहीं जापान, इंडोनेशिया में यह 20 साल निर्धारित किया गया है, और दक्षिण कोरिया में 19 साल निर्धारित किया गया है। उसी तरह कुवैत, जो लेबानन, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर में मतदान की आयु 21 वर्ष किया गया है। किंतु अगर देखें उज़्बेकिस्तान में तो यह 25 वर्ष रखी गई है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है मतदान करने का उम्र हर एक देश में अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन कहते हैं बच्चे जो हैं वयस्क जब हो जाते हैं तभी उनको मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो सोच विचार करने लग जाते हैं। और कभी मत जो होती है इतनी महत्वपूर्ण होती है जो सरकार बदल देती है, इसलिए बच्चों को जो है समझदार होना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चुनाव सुधार। देखिए, चुनाव में सुधार होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा है सार्वभौमिक व्यास मताधिकार पर आधारित भारत की चुनाव प्रणाली में न केवल हमारे मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया है, बल्कि एक राजनीतिक दल या दलों के समूह को दूसरे दल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके सरलता एवं शांतिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने में भी काफ़ी सहायक हुआ है। यानी जो है चुनाव के अंतर्गत हम सरकार को बदल भी सकते हैं, सरकार खड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन यही सरकार जब 5 साल के लिए चुन लिया जाता है तो ये अपनी मनमानी करने लग जाती हैं, जो सही नहीं है। कहते हैं अगर इनका मतत्व देश कल्याण की होती तो शायद देश में इतनी तरह के जो है गड़बड़ी नहीं रहती। हमारे देश में आए दिन न्यूज़ देख लीजिए, इतनी जो है हेर फेर बदलाव हो रही है कि शायद किसी और देश में इतना देखने को न मिलता हो। हमने ये भी देखा है कि मोटे तौर पर हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और लोगों ने सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया है। इस तरह चुनाव हमारे लोकतंत्र जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और ये चुनाव महत्वपूर्ण भी होते हैं किसी भी देश के लिए तथा इसके अनेक समस्याएं हैं जो न केवल हमारे चुनाव प्रक्रिया गुणवत्ता को बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को भी काफ़ी प्रभावित करती है और यह निश्चित रूप से चुनाव सुधार की मांग भी करती है। कहते हैं चुनाव में अगर सुधार नहीं हुआ तो ये काफ़ी जो है संकट का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है राजनीतिक में आ जाएंगे जो जिनके लिए सही नहीं है। आजकल देख लीजिए, किसी व्यक्ति के मुंह से सुन लीजिए तो कहते हैं आज तो राजनीतिक होना एक गुंडा के समान होता है, क्योंकि आजकल शरीफ बंदे तो खड़ा होते ही नहीं है। आपने नायक फिल्म में भी देखे होंगे कि वहाँ पर बेचारे ने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो। तो चलिए फिल्म था, लेकिन फिल्म में भी वही बात की आईना दिखाई जाती है जो हमारे राजनीति में होता है। आप ऐसे बहुत से राजनीति फिल्म देखते हो जिसमें कूटनीतियों का उपयोग होता है। तो कहते हैं फिल्म भी जो है सच्चे जीवन पे भी आधारित होती है। कई फिल्म बनाई गई जो सच्चे जीवन पे भी आधारित है, उनमें बहुत सी बातें ऐसे बताए गए हैं कि देश के जो है रिप्रेजेंट करने के लिए सही भी नहीं है।
फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में लंबे अवधि के चुनाव सुधार में संसद, सरकार और आयोग, प्रेस तथा जो है लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अतीत में कानून की जो है स्पष्ट खामियों दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जरूर गए हैं। निकट अतीत के अनुभव के आधार पर जो है कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए भी शीघ्रता से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे चुनाव में हेरा फेरी, नकली और फर्जी मतदान प्रतिरूपण। देखिए ये जो है हर क्षेत्र में आपको आम देखने को मिल जाता है। चुनाव में हेरा फेरी, नकली और फर्जी मतदान, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता लोग ने भी एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में हेरा फेरी किया है, नकली किया है, फर्जी डाला है। तो ये आप आजकल न्यूज़ में भी देख सकते हो। आखिर उनकी क्यों शक की सुई है उस पर गया, लेकिन बाद में इस बात को प्रूव भी किया गया कि सब गलत है। लेकिन इनके मन में ऐसी भाव आया क्यों, ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट आ जाती है। चुनाव के दौरान हिंसा होना ये तो आम बात है। कहते हैं अगर चुनाव का साल भर रह जाता है, ठीक है, उसके बाद पहले एक साल देखिए कितने दंगे फसाद हर क्षेत्र में होंगे। ऐसे ऐसे घटना होगी जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आखिर ऐसा घटना क्यों घटाई जाती है? कारण ये होता है कि दूसरे के सरकार को गिराने के लिए, ठीक है, अगर दूसरे का, अगर मान लीजिए किसी सरकार में ऐसी उधर होती है, उधर गलतियां होती है, तो दूसरी बात ये होता है कि लोगों के मन में उनके प्रति जो है गलत भावनाएं जो है उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये सरकार सही नहीं है, इनके कारण दंगे फसाद हुए हैं, तरह तरह की बातें जो है लोगों के मन में अनुसरण कर जाती हैं। इसलिए चुनाव के दौरान हिंसा होना एक आम बात होती है और आज के समय चुनाव में हिंसा करवाना तो आम बात है। आपने फिल्मों सब में भी देखते हो कि लोग जो है चुनाव आने से पहले दंगा फसाद करवाते हैं, मरवाते हैं, कटवाते हैं और बाद में जो है हमदर्दी बटोर के वहाँ पर जो है विजय हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, इससे देश की गरिमा खराब होती है। कहते हैं चुनाव होना देश की लोकतंत्र को जो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हिंसा देश की जो है अखंडता को ख़त्म करता है। हमारा देश कई धर्मों का देश है और ये सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और यहाँ पर जो है भाईचारा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा देश जो है और हमारा देश की गरिमा हमेशा जो है कायम रह सकती है। धन और बाहुबल की प्रतिकूल भूमिका, देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा यही बात बोलता है कि चुनाव में धन और बाहुबलता की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहती है और इसके कारण ही करप्शन है। आप सोचते होंगे कि कई क्षेत्रों में सरकार ये कहती है कि मोबाइल में वीडियो बनाइए, हमें दीजिए, हम करप्शन को बंद करेंगे, लेकिन कभी उनसे पूछा गया है कि जब इलेक्शन होता है तो आप इतने सारे धन कहाँ से लेके आते हो? इतने पोस्टर, इतने सभाएं, इतने कहाँ से आता है? क्या आप 5 साल में अरबपति बन जाते हो? किसी ने पूछा है? ये बात आपको पता स्वयं है कि कहते हैं इलेक्शन में सबसे बड़ी बात होती है धन, और ये लोग इतने एडवर्टाइजमेंट लगा रहे होते हैं टीवियों पे, कोई भी चैनल खोल लो, कहीं भी चले जाओ, इनके एडवर्टाइजमेंट इतने चलते रहते हैं। आखिर ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके? क्या ये कमा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कमाई कर रहे होते हैं? सारा करप्शन का धन होता है। ये दूसरे को तो कहते हैं जेल के अंदर ठूस रहे होते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक नेताओं को कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। ये करप्शन का मेन कारण है इलेक्शन। भारत में इलेक्शन अगर ना अधिक हो तो करप्शन भी भारत से ख़त्म हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि करप्शन जो है आम गरीब बंदा करता है, शायद आप गलतफहमी में हो। आम गरीब बंदा तो 2 रोटी की कमाई में लगा रहता है। करप्शन तो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े अमीर लोग करते हैं, बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स लोग करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। आम गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं जानता, और ये लोग आम गरीब बंदे का ही खून चूस चूस के जो है अपनी राजनीतिक चला रहे होते हैं। तो इस पे जो है सभी को सोचने की बात है। जो देश की भलाई सोच रहे होंगे ये ज़रूर इस बात को सोचेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि करप्शन कहते हैं ऐसा घर कर गया है लोगों के दिमाग में कि ये उनके निकल नहीं सकता। आज देख लीजिए, जिस पर मर्जी आप छापे मार लीजिए, आप देखिएगा कि उसका जो है आय से अधिक धन निकलेगा तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि जर्नल सी बात है, ये लोग इलेक्शन की तैयारी में 5 साल पहले से ही लग जाते हैं। जैसे जीतते हैं वो अगली जीत के जो ललायित होते हैं, और वो अभी से जो है पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। वो कई रूपों में करते हैं, जैसा जैसा उनको लगता है वैसे वैसे रूपों में वो पैसे इकट्ठा करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे देश में करप्शन नहीं, हमारे राज्य में करप्शन नहीं है, शायद वो कहते हैं उनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है
मतदाताओं विशेषकर कमज़ोर वर्ग को लोगों को डराना धमकाना ये तो आम बात है। आपने देखा ही होगा कि अगर गांव में आप चले जाओ तो वहाँ पर ये बातें आपको आम दिखेगी कि यहाँ पर लोगों को डराना धमकाना मारने की बात करना। अब ये लोग पुलिस में भी शिकायत लेके जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि पुलिस वाले तो इन्हीं बाहुबलियों के ही होते हैं। ठीक है, कभी भी आम बंदे को पुलिस कहाँ देखती है, वो तो सिर्फ बाहुबली चले जाएं तो उनके लिए कुर्सी आगे बढ़ा देते हैं, और आम गंदे बंदे चले जाएं तो उनको कहते हैं बाहर बैठो, चलो बाहर प्रतीक्षा करो। तो ये आम बात है। सरकार बेशक ही कह रही है कि हमने जो है कानून व्यवस्था में बहुत सुधार किया है, बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन कभी ये आम व्यक्ति बन के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, इनको जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इनको जाएंगे क्यों भाई, इनको तो अपने इलेक्शन से टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो 24 घंटे अपने आगे की जो है जीतने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि भाई मुझे वहाँ पर जाके भाषण देना है, अच्छे से भाषण देना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। यही तो इनकी राजनीतिक है। काम कब करते हैं ये तो ऊपर वाले ही जानता होगा, हमें तो पता ही नहीं इस बात का। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो 100% होता है। आप देखिएगा इलेक्शन में जितने भी गाड़ी उड़ी यूज़ करते हैं सब के सब जो है सरकारी होती है, और सरकारें पर ही सारा बिल ठोकी जाती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना इलेक्शन में आम हो गया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और बड़े बड़े नेता को मैंने देखा है कि इस बात को वकालत करते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन वही कर रहे होते हैं और उनसे कौन पूछेगा। कहते हैं हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसका वो करेगा उसका वो करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, बाद में दोनों हाथ मिला लेंगे। आपने देखा ही होगा इलेक्शन में पहले तो दुश्मन के रिप्रेजेंट करते हैं सभी लोगों के सामने, और लेकिन बाद में हाथ मिला के अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये तो आम बात है आज की राजनीति की कूटनीतियाँ। मतदान केंद्र पर कब्जा और चुनाव राजनीति का अपराधीकरण, देखिए बात तो ये सच्चाई है। हम यहाँ पर है किसी चीज़ पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बात जो है सच्चाई की हम कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं किसी व्यक्ति को ये बुरा भी लगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बुरा भी लग सकता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर है। क्योंकि देखिए हम बात सच्चाई की कर रहे हैं, जो सच्चाई है आज के समय में। आपने टीवी पे भी देखते हो, न्यूज़ पे भी देखते हो, लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं नहीं है। कहते मतदान केंद्र पर कब्जा करना, चुनाव राजनीति का अपराधीकरण करना, ये तो आम हो गई है। आपने देखा भी होगा कई बार इलेक्शन के पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाया कि आप कोई भी बटन दबाइए उनके ऊपर वोट चला जाता है। आखिर उनके मन में ये बात क्यों आई, किस लिए आई? आपने एक मशीन का चेकअप कर लिया, आपने क्या सारा मशीन को चेकअप किया? आपको पता है कि भारत में 10 लाख से ऊपर मशीन है, तो क्या एक मशीन को चेक कर लेने के लिए 2 मशीन को चेक कर लेने से क्या सारा मशीन चेक हो जाता है? और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे विश्वास करना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी खराब भी हो सकता है, गड़बड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि भारत, देखिए पहले के समय में ये होता था कि जो बाहुबली होते थे, जो धन वाले होते थे, वो वॉलेट को भी चुरा लेते थे, उठा लेते थे और कब्जा भी कर लेते थे मतदान पेटी पे। लेकिन आज थोड़ा सा कानून है, जागरूकता है, तो ये लोग जो है सीधे उंगली घी नहीं निकालते हैं, उंगली को टेढ़ा करके जो है अपना कार्य पूरा करते हैं। और ये कैसे करते हैं आपको भी भली भांति समझ होगा। लेकिन फिर भी भारत में जो है इलेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही शांतिमय होता है। कहते हैं किसी क्षेत्र में जो है इलेक्शन से पहले बहुत दंगे फसाद होते हैं, ये तो आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो है चित्र आपको दिख रहा है कि लोग बहुत ही प्यार से लाइन में खड़े हुए हैं, अपना मत अधिकार दे रहे हैं और अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये चित्र जो है शांतिमय की प्रक्रिया को दिखा रहा है, जो कि ज़रूरी होना चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर शांतिमय इलेक्शन हो, यही जो है सबकी कल्पना होती है। और भारत सरकार भी इसके पीछे जो है सदैव अग्रसर ही रहेगा। उसके पश्चात है इन नकारात्मक जो है गतिविधियों के विभिन्न सूत्रों पर चर्चा की गई है और चुनाव सुधार के लिए कार्य भी किए जा रहे हैं। वास्तव में कई चुनाव सुधार लागू किए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव की कोई भी अव्यवस्था कभी भी पूर्ण जो है दोषी रहित नहीं हो सकता। यानी जब भी चुनाव होता है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रहती ही रहती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम सदैव रहता ही रहता है। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां और सीमाएं होगी ही होगी। तो चुनाव में देखा जाए तो हमेशा खामियां रहेगी, और जर्नल सी बात है, जिसके पास पैसा उसकी ही सरकार।
ये बात हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा चलता था, अभी भी चलता ही रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि देखिए, चुनाव में अगर आप देखिएगा तो डिजिटलाइजेशन का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। आप कोई भी साइट खोल के देखिएगा इलेक्शन के टाइम, कहते हैं साइडों पे जो है इलेक्शन का ही प्रचार चल रहा होगा। आप टीवी में देखिएगा तो वहाँ प्रचार चल रहा होगा, मोबाइल में कोई ऐप खोलिएगा तो वहाँ पर पहले इलेक्शन का प्रचार आने लग जाता है। तो ये सारे पैसे इतने कहाँ से आते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये नहीं समझ में आता। इवन कि कुछ मीडिया भी होता है तो इक्का दुक्का बंदे का ही जो है माला जाप रहा होता है और दूसरे बंदे को जो है गलत साबित कर रहा होता है। तो कहते हैं चुनाव में जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है। आपने देखा होगा कि कुछ मंत्री लोग जो है स्पेशल न्यूज़ चैनल पे ही जाते हैं, ठीक है, स्पेशल न्यूज़ चैनल के उद्घाटन पे जाएंगे, सालगिरह पे जाएंगे, लेकिन दूसरे न्यूज़ चैनल पर क्यों नहीं जाते? क्या उनसे दुश्मनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या दूसरे न्यूज़ वालों से उनका दुश्मनी है? क्या इक्का दुक्का पे ही जाना उनका गौरवमान को बढ़ाता है? ये सोचने वाली बात है। यही बात आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला सिस्टम में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बात सच्चाई है। मैंने भी देखा है, मैंने भी समझा है, मैंने भी अपने मन से प्रश्न किया है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दोष तो रहा ही होगा। वास्तविक व्यवहार में चुनाव प्रथाओं में हमेशा खामियां रहेगी, ये सदैव ही बात रहेगा। कहते हैं चुनाव जिस दिन शांतिमय ढंग से हो जाए और जो है लोगों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उस दिन सोचिएगा कि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल चलने लग गया है। चुनावों के सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हमें कुछ और तरीके ढूंढने होंगे। चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव विद्वानों, राजनीतिक दलों, सरकारी प्रायोजित समिति और विभिन्न स्वतंत्र तंत्रों से आते ही रहे हैं, लेकिन इस पर कोई जो है प्रक्रिया नहीं हुई है। कहते हैं ये बात तो मैं अब उठा रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत से विद्वानों ने पहले भी उठा चुके हैं। उन्होंने अपने बहुत ही मत रखे हैं, लेकिन उनकी बातों पर आज तक अनुसरण नहीं हुआ है। मुझे भी ये सब बात तब पता चला जब मैंने किताबें पढ़े, मैंने जाने, देखे, समझे, तो यही बात मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आगे हमारे समक्ष आया है सुझाए गए चुनाव सुधारों की आरंभिक सूची निम्न है। देखिए, बदलते परिदृश्य में मेल खाते हुए समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतांत्रिकरण, यानी समय समय पर जो है लोकतांत्रिकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। वोट सीट्स असंतुलन कम करने के लिए प्रचलित बहुवादी व्यवस्था को स्थापना, किसी एक से जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को लागू करना, तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार है। राजनीतिक दल जो है पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें, लेकिन राजनीतिक दल जो है पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे तब ना, कार्य तो कोई करता ही नहीं है। मैं तो कहा सभी के सभी इलेक्शन में लगे रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्य प्रणाली को नियमित करना होगा। सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त बनाना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात भी यहाँ पर कुछ हद तक गलत है कि सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानून को सख्त करना। देखिए, भारत में भी ये प्रावधान बना हुआ है कि जो गलत करता है उसको सजा देने का पूरा प्रावधान किया है, लेकिन आपको पता है कि राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजनीति में बंदे को एक तरफ से इल्जाम लगाई जाती है, दूसरे तरफ से क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, वही बात आ गया ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हम सब एक हैं, राजनीति में सब एक हैं। दिखावे के लिए एक दूसरे की दुश्मनी दिखाते हैं लोग, लेकिन सब एक हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जो है गलत भी बोल दिए हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा भी कर दिए हैं, फिर भी जो है कुछ समय के बाद पहले जो होता है उनको कानून शिकंजे में चले जाते हैं, फिर उनको छूट जाते हैं। तो समझिए ना, सारे खेल जो है उन्हीं का अंदर ही चलता है। भारत लोकतंत्र तब होगा जब सभी व्यक्तियों को सामान्य नज़रों से देखा जाएगा। और ये क्या सामान्य नज़र तो यहाँ हुआ ही नहीं। आम गरीब बंदा गलती करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और अमीर लोग गलती करे तो उसको जो है इनाम दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा अक्सर राजनीतिक नेता जो है जेलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, और कुछ दिन के बाद वो छूट भी जाते हैं और फिर राजनीति में चले जाते हैं। अब यहाँ प्रावधान है कि जिनको दोषी करार हो गए उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप चुनाव में देखिए वही व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने क्या संविधान की बातों को अनुसरण किया? नहीं किया। तो ये कहाँ की बात है, कहाँ की समझ है? दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है वास्तविकता को जानना, समझना। और आपको क्या लगता है, आप रट लोगे तो क्या आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी? आप समझने की कोशिश करो, आप भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हो। उसके पश्चात है देखिए, चुनावी खर्चे को कम करने के लिए सरकार द्वारा चुनावी व्यय को वहन करना।
आप देखिए भारत में प्रावधान है, एक जो है चुनाव आयोग ने एक लिमिट दिया हुआ है कि लोग इससे अधिक पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर किसी ने इससे अधिक पैसा खर्च किया तो उसका जो है सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आप क्या लगता है कि इतने सारे इलेक्शन होते हैं, क्या व्यक्ति जो निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से पैसे खर्च करने का, क्या वो लोग उतना ही पैसा खर्च करते होंगे? नहीं ना। तो फिर इनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं होती? अगर ऐसा होता तो राजनीति में एक व्यक्ति भी नहीं टिकता, क्योंकि हमें पता है इलेक्शन में जो चुनाव आयोग ने निश्चित किया है पैसा और धनराशि, उससे न जाने लाखों करोड़ों गुना लोग अधिक धन लगाते हैं इलेक्शन में। तो इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? मैंने तो कई लोगों के मुंह से सुना है कि उन्होंने ज़मीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, इवन कि कितने घर बेच दिए, फिर जाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब सोचिए, हमारे देश में चुनाव के दौरान खर्च करने के जो है एक लिमिटेशन है, और उससे अधिक को अगर कोई पाया जाता है खर्च करते हुए तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए, अब सारे नेता पर प्रश्न उठ रहा है, क्या वो इलेक्शन में इतने ही पैसे खर्च करते हैं जितने चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है? और आपको हैरान होंगे, आप एक बार नेट पर रिसर्च करके देखिए कि चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने की जो राशि है कितनी रखी है। आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाओगे और सोचोगे कि भारत कैसा देश है जहाँ पर लोग चुनाव के में जो है पानियों की तरफ पैसा बहाते हैं और कानून में कुछ और बात लिखी गई है। तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है कि चुनाव में खर्चे अधिक होते हैं, तभी तो करप्शन भारत में बरकरार है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी काला धन निकाल लीजिए, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक इलेक्शन की प्रावधान यहाँ पर घटेगी नहीं, करप्शन दूर नहीं होगी। करप्शन आम गरीब बंदे से नहीं होता है। आप देखोगे कि जब नोटबंदी हुआ था तो आम व्यक्तियों के जेबों से कुछ ही पैसे निकले, और निकले भी नहीं, इतने निकले कि वो बेचारे सिर्फ 2 दिन का रोटी खा सकते थे। लेकिन मेन जो पैसा निकला, जब वो बैन की गई, जो भारत में जो है लगाई गई, लेकिन इसमें जो 1000 और 500 के नोट उनके घरों से निकले जो बहुत अमीर थे, बहुत ही पावरफुल थे। अब सोचिए कि आम व्यक्ति करप्शन कर रहे हैं कि बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं। अब ये भी मत सोचिए, एक और बात देखिए कि जब नोटबंदी हुई तो उससे 3-4 महीने पहले कौन कौन इंडस्ट्रीज वालों ने लोगों को गिफ्ट दिया, नई नई कंपनियां खोली। आखिर उन्होंने नई कंपनी क्यों खोली और लोगों को फ्री क्यों किया? क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि सरकार नोटबंदी करने वाली है, और जो हमारे पास करप्शन धन है, काला धन है, अगर हम इसको जो है सफ़ेद नहीं किए तो हो सकता है कि मैं भी इसी चपेटे में आ जाऊं। तो आप अगर नोटबंदी से अगर 3-4 महीने की अगर न्यूज़ देखो निकाल के, तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्री सफ़ेद पोशी मिल जाएंगे जिन्होंने जो है नए नए कंपनियां खोले, लोगों को गिफ्ट दिए, अपने एम्प्लॉयज़ के तरह तरह की चीज़ें दिए जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं दिया, और लोगों को ऐसे सुविधाएँ दिए, ऐसे लालच दिए, फ्री में कर दिया सब कुछ। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार भी दो नज़र कर रही है। आम गरीब बंदों को ये बात नहीं बताई कि हम नोटबंदी करने वाले हैं, और बड़े बड़े जिनसे उनको पैसा आता है इलेक्शन में, उनको पहले ही उन्होंने बता दिया, पहले ही उन्होंने संकेत कर दिया, और उन्होंने पहले ही उस पैसे का यूटिलाइज़ कर लिया। अब सोचिए, सरकार का दो नज़रिया हुआ कि नहीं? लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हर एक व्यक्ति को सामान्य अधिकार है, सरकार को भी सामान्य अधिकार दी गई है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में उनसे ही तो पैसा मिलते हैं उनको, जो इतने सारे पैसे वो खर्च कर रहे होते हैं, डिजिटलाइज्ड मीडिया का उपयोग कर रहे होते हैं, हर जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट चिपका रहे होते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो है चुनावी खर्च को कम करने की सरकार द्वारा चुनावी व्यय वहन किया गया है, लेकिन इस पर कोई भी जो है विचारधारा समक्ष नहीं आती है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का विशेष प्रावधान। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये देखने को भी हमें मिला है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है कहते हैं साइकिल का 2 पहिए होते हैं, एक पहिए से साइकिल नहीं चलता है। तो महिलाएं भी
बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजनीतिक में। चुनाव के दौरान धन और बाहुबली की भूमिका कम करना। अब देखिए, चुनाव में जैसे कि मैंने अभी पूरी बात आपको बताई कि धन का तो यहाँ पर खुलेआम जो है पानियों की तरह बहाई जाती है, और ये कभी मुझे समझ नहीं आया धन कहाँ से आया, और मैंने बताया कि सब करप्शन का ही कारण है। और बाहुबली की भूमिका कम नहीं है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में कई लोग हैं जो जेल के चक्कर काट के आते हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। ये सब बाहुबली होते हैं। ये बेशकली जो है अपने डर धमका के लोगों को जिता लेते हैं, या लालच दे दे के लोगों को जो है मन को जो है बेकार कर देते हैं। तो ये भूमिका कम करना भारत में शायद संभव नहीं है। सरकार जितने मर्जी अच्छा हो ले, ये सब कम करना उनके बस में नहीं है। क्योंकि आप देखते ही होंगे कोई भी सरकार बनती है तो उनका भी लालसा यही होता है कि उनका जो है पार्टी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे। तो कोई भी जो है स्वतंत्र फैसला नहीं लेते हैं, वो चुनाव सब बातों को ध्यान रख के फैसला लेती हैं, क्योंकि भाई पार्टी को भी तो लेके साथ में चलना है। आपने शायद पढ़ा होगा यूएसएसआर के बारे में, वहाँ पर जो है गाल्बाचो ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए लेकिन उसके पार्टियों ने सहयोग नहीं दिया। इसलिए आपको पता है कि शीत युद्ध के जो दौर थे 1991 में ख़त्म हो गई जब बर्लिन की दीवार गिर गई। रीज़न यही था कि गाल्बाचो जो थे अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन उनके मंत्री उनको सहयोग नहीं दे रहे थे। अब आज भारत की राजनीति में भी यही है, कुछ अगर अच्छा करना चाहेंगे तो दूसरे बंदे जो है अपने टांग खींच लेंगे और उसकी सरकार ही गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे फिर। तो ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चुनाव में राजनीतिक और आपराधिकरण को रोकना। देखिए, चुनाव में राजनीतिक और आपराधिकरण को रोकना शायद आज तक संभव हुआ ही नहीं। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि चुनाव से 1 साल पहले या 6 महीना पहले ही ऐसे दंगे फसाद हो रहे होते हैं जिसका कल्पना करना भी संभव नहीं है। आए क्षेत्र में कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को आग भड़काया जा रहा है, लोगों को तरह तरह की धर्म के नाम पे, धर्म के बात पे, हर चीज़ों पे लड़ा रहे हैं। उनको पता है कि इनका टर्निंग पॉइंट जो है हम भारत के लोगों का वो धर्म ही है। अगर धर्म के रिगार्डिंग कुछ भी गलत बोल दे तो ये आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और इनके आगे हम टीवी पे अच्छे अच्छे न्यूज़, अच्छी अच्छी बातें बोल बोल के जो है लोगों के दिल में जो है घर कर जाएंगे। इसलिए कि आगे उनसे ही हमें वोट लेना है, हम उनके तरफ बोलेंगे तो इससे हमें वोट मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। लेकिन ये दंगा फसाद में आपने जनरली देखा होगा कि सारे मंत्री का ही खपात होती है। कहीं से भी लिंक निकलता है ना तो मंत्री जी ही सामने आ जाते हैं। तो सोचिए, जब दंगा फसाद करने वाला ही कहते हैं ये लोग हैं तो इनको कहते हैं आम बंदा को बचाएगा कौन फिर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि जब रक्षा करने वाला ही भक्षक है तो रक्षा की कौन कर पाएगा? बड़ी बड़ी बहुत प्रश्न है कि चुनाव में राजनीतिक अपराधीकरण का रोकना शायद संभव नहीं है, नहीं हुआ है। हमने तो इतने सारे दंगे फसाद देखे हैं, अपराधीकरण देखे हैं जिसपे हम खुद ही जो है दुखी हो चुके हैं। चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगा देना। अब देखिए, ये रोक की बात कर रहे हैं, चुनाव में प्रावधान की गई है। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जिस चीज़ पे रोक होती है लोग वही चीज़ करते हैं। अब चुनाव में देख लिए जाति धर्म, और ये न्यूज़ वाले भी बोलते हैं, आपने सुना ही होगा कि गुजरों की वोट वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर पिछड़ी जनजाति का वोट मिलता है, वहाँ पर कहते आदिवासियों का वोट मिलता है। आपने सुना ही भी होगा न्यूज़ पे। हाँ, मुझे तो पता है, हंसी आता है इस बात पे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ वाले भी तो यहाँ धर्म पे बांट रहे होते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगाना चाहिए। और ये लोग देखिए बोलते भी हैं कि यहाँ हिंदू वोटिंग अधिक है, वहाँ मुस्लिम वोटिंग अधिक है, यहाँ पर यादव वोटिंग अधिक मिलता है। अरे धर्म के रिगार्डिंग तो आप ही बांट रहे हो, न्यूज़ वाले बांट रहे हैं, राजनीतिक नेता बांट रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव प्रचार में धर्म और धर्म के आधार पर अपील करने पर पुण्य रोक लगना चाहिए। ये कहाँ पर रोक लगी हुई है? ये बात बहुत से समर्थकों ने बात बोला था, लेकिन इस पर रोक कभी नहीं लग सकती, क्योंकि यही तो इनका तकिया कलाम है। क्योंकि आपके क्षेत्र में कौन बंदा रह रहा है, कौन है, किस जाति के अधिक रह रहे हैं, यही पे तो वोट उनको मिलता है। और भारत में जब तक ये सब बातें रुकेगी नहीं, भारत जो है लोकतांत्रिक पुण्य नहीं हो पाएगा। कहते हैं बड़े बड़े लोग ने बड़े बड़े वकालत की है, बड़े बड़े बातें बोली है, लेकिन ये सब बातें मिथ्या है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्थ तब सार्थक सिद्ध होगा जब भारत में किसी प्रकार के दंगे फसाद न हो। मैं तो कहता हूँ अगर दंगा फसाद 1 साल भी अगर न हो देखने को मिले ना तो मुझे लगेगा कि भारत सुधर गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर तो आए दिन नए नए जो है कांड चलते रहते हैं और इसमें जो है बड़े बड़े लोग ही लिप्त पाए जाते हैं। देखिए, इस बॉक्स में जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है बहुलवादी।
बहुलवादी अवस्था में अधिकतम मत पाने वाले प्रत्याशी को चुनाव में विजय घोषित किया जाता है और एक सदस्यता तथा बहु सदस्यता जो है चुनाव क्षेत्र में यह मत प्रणाली वर्तमान समय में विधायिका के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसी चुनाव विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या में अनुपात के आधार पर विभिन्न वर्ग के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है और इस व्यवस्था में कोई भी गुट, यदि वह राजनीतिक दल हो या हित समूह, लोकप्रिय वोट से प्राप्त अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। निकट अतीत में निर्वाचन आयोग ने कई नई पहल किया है और जिसकी ओर पहले इशारा किया जा चुका है कि इसमें प्रमुख है राजनीतिक दलों द्वारा राज्य स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव की योजना करना, मत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल पर पाबंदी। देखिए, मत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगानी चाहिए, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इन सब बातों का अगर अनुसरण किया जाए तो भारत में मतदान सबसे जो है लोकप्रिय हो जाएगा। मतदाता सूची और कंप्यूटरीकरण करना, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतदाता पहचान पत्र, उसके पश्चात आता है चुनाव खर्च के रखरखाव तथा प्रत्याशी द्वारा उसे फाइल करने की प्रक्रिया का जो है सरलीकरण करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। चुनाव के दौरान प्रतियोगियों के समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आचार संहिता का जो है सख्ती से लागू करने के लिए अनेक कदम उठाना, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली में जो है विपरीत परिस्थितियों में भी जो है सुचारू रूप से काम किया है। इसलिए उम्मीद बन गई है कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहेगा और उसमें बेहतरी होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे भी उम्मीद है कि शायद हमारे देश में कभी एक ऐसा समय आएगा जहां पर सब कुछ जो है व्यवस्थित रूप से होगा और शायद दंगे फसाद और धर्म के नाम पे लोग जो एक नाटक करते हैं वो ऐसा न हो, क्योंकि हम एक हैं, हमारा देश एक है और हम भारतीय हैं। कहते हैं धर्म हमें अच्छे कर्म सिखाती है, हमें अच्छे बातों का अनुसरण कराती है। हमारा देश एक है, हमें एकता पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जो है एक बंधन में बंधे हुए हैं। हम बेशक जो यहाँ पर हैं, हम एक ही माले के कई फूल हैं, हम कई फूल हैं लेकिन है एक माले में ही गुथे हुए हैं। तो इसलिए हमारा देश लोकतंत्र है और शायद लोकतंत्र भारत में कायम होगा, यही विश्वास हमेशा रहा है। हमारे लोकतंत्र मूल्य के प्रति जो है वचनबद्धता और संभावना से सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शायद ऐसा कोई समय आएगा जब सरकार जो है हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। मैं ये नहीं कहता कि अब तक नहीं कुछ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए वो चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आपको भी यही बात करता हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी भी कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले जो है नया विचार के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, समझ वाली थी, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आपको भी हर बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बातों पे आपको अनुसरण करना आवश्यकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव वाली बातों को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जो है जीवन सार्थक होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और आपको ये समझ में आया, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।